الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. خواتین حضرات، تلاوت قرآن پاک کے بعد باقاعدہ AGM کا آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ خالصار اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام لیاقت علی گوہر ہے اور میں مختلف آرگنائزیشنز میں میڈیا کا کام کرتا رہا ہوں، اور آج کل میں سمیڈا اور PCMA کے اندر وقتاً فوقتاً اپنی کنسلٹنسی کی خدمات انجام دیتا ہوں. تو اٹس این آنر ٹو بی دی کمپیئر آف دس پروگرام. ناؤ I invite the respected outgoing chairman, the Honorable Taimur صاحب, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دور کی جو سالانہ رپورٹ ہے وہ پیش کریں. The Honorable Chairman PCMA for last tenure, Mr. Taimur Dawood صاحب. Bismillahirrahmanirrahim. EC members, members of PCMA, potential members and Secretary General, Assalamu alaikum. PCMA کے بحاف سے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں to the 4th Annual General Meeting of Pakistan Chemical Association. اس سے پہلے میں آغاز کروں. I think ہمارا یہ ادارہ 2015 میں اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آج جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں ایک اسٹرانگ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کے نیچے کھڑے ہیں, تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس ایسوسیشن کو ہم اس پلیٹ فارم تک پہنچا دیں. تو اس سلسلے میں میں کچھ لوگوں کا نام مینشن کرنا چاہوں گا. میاں ادریس ستارہ کیمیکل سے, لیٹ چودھری صادق ڈیسکون سے, ظفر محمود فرام نمر اور علی آغا فرام ICI. ان 4-5 لوگوں نے سوری میں ابرار کا نام ادھر مینشن کرنا بھول گیا, مائی اپالوجیز. آئی تھنک ان لوگوں نے ایسوسیشن بننے سے پہلے بہت کام کیا تھا. آئی تھنک ان لوگوں کا ویژن تھا, ان لوگوں کا انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے یہ ادارہ قائم ہوا. تو آئی تھنک ہمیں ان سارے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. 2015 سے آج ہمیں کافی لمبا سفر طے کر چکے ہیں, اور ماشاءاللہ آج ہمارا ادارہ جو ہے 80 ممبرس کے مشتمل ہے. آئی تھنک یہ 80 ممبرس جو ہیں یہ پورے میجورٹی آف دی سیکٹرز جو پاکستان میں کیمیکلز کو کنزیوم کرتے ہیں ان ساری انڈسٹریز کو کافی عرصے سے سرو کرتے آ رہے ہیں. آئی تھنک ہمارے آج کے آڈینس میں کچھ ہمارے پوٹینشیل ممبرس بھی ہیں, تو آئی ہوپ کہ ہم اس شو سے ان کو بھی کنونس کر سکیں کہ اس ادارے میں جان ہے, اور اس ادارے میں ناٹ اونلی
हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, बट आई थिंक हमें अपने मुल्क के लिए भी कुछ करने का मौका मिलता है. आई थिंक जो भी हम यहाँ लोग बैठे हैं फॉर्चुनेट लोग हैं, तो आई थिंक मुल्क को वापस देना ही उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ हम भी तरक्की करेंगे. आई थिंक इस साल PCMA में हमने काफ़ी कोशिशें की कि हम कुछ अच्छे काम कर सकें. हमने बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और बहुत डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे दोनों के ऊपर हमने फोकस किया. ऑन दी इंटरनेशनल फोरम इकबाल साहब हमारे PCMA का झंडा मेरा ख्याल काफ़ी मुल्कों में लहराते रहे हैं. आई थिंक उन्होंने हमें काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दी है. हमारे इदारे ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स में एक कॉन्फ्रेंस था जिस पे लियोन फ्रांस, उधर इकबाल साहब ने हमें रिप्रेजेंट किया. जिस तरह से हमें पता है कि केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका कुछ गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं. तो इस इंडस्ट्री ने ही एक इनिशिएटिव लिया कि हम ऐसे फोरम्स पे जाएं, सीखें कि कौन कौन चीज़ें, क्या क्या हम कंट्रोल्स डाल सकते हैं उन केमिकल्स के ऊपर जिनसे एनवायरनमेंट, जिनसे लोगों को कोई एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं. I think Iqbal साहब represented us over there. वहाँ काफ़ी learnings हमारी हुई, and I think जो learnings हुई वो इकबाल साहब ने members को impart भी की. उसके बाद last November Gulf Petrochemical and Chemical Association का एक annual forum होता है. It's held in Dubai every year. वो उस पर भी PCMA की रिप्रेजेंटेशन थी. माई सेल्फ एंड इकबाल साहब रिप्रेजेंटेड द ऑर्गेनाइजेशन एट दैट फोरम, बिकॉज उस फोरम पे हमें मौका मिला टू हाईलाइट द केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, द पोटेंशियल्स दैट वी कैन ऑफर. एंड जो एक चीज़ हमने वहाँ डिस्कस की थी वो ये थी कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस केमिकल्स की हम एक पाकिस्तान में करेंगे. अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने वो ख्वाब छोड़ा भी नहीं है. उसके ऊपर काम हो रहा है. एंड आई थिंक इकबाल साहब अगर आज की तकरीब में कुछ नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में हमसे कुछ ज़रूर शेयर करेंगे. फिर इस साल हम एक पाकिस्तानी डेलीगेशन PCMA की तरफ से लेके गए थे टर्क कैंप एग्जीबिशन जो इस्तांबुल में हुआ था. आई थिंक कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने उसमें से पार्टिसिपेशन की थी. एंड आई होप कि उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सका जहां वो लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकें और कुछ अगर कोलैबोरेशंस करना चाहें तो आई होप उनका भी मौका हमारे मेंबर्स को मिला होगा. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस एसोसिएशन का ये है टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू आवर मेंबर्स टू नेटवर्क एक्सेस मिले मुख्तलिफ कंपनीज को इन डिफरेंट कंट्रीज. आई थिंक ये चीज़ भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको कंटिन्यू रखेंगे. अब जी डोमेस्टिक फ्रंट पे आ जाते हैं. तो आई थिंक इस साल का जो हमारा मेन थ्रस्ट था वो ये था कि हम गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान PCMA को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह से लेके जाएं. गवर्नमेंट के साथ हम अपना इंटरेक्शन जो है उसको काफ़ी इन्हांस करना चाहते हैं. आई थिंक कि इसमें हमें काफ़ी सक्सेस हुई है. आई
थिंक सक्सेस को हम इस तरह से गेज कर सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो टैरिफ कमेटी बनाई थी उसमें PCMA को एक फॉर्मल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक उसके ऊपर सीट मिली थी, तो उस पर हमने अपनी रिकमेंडेशंस दैट फोरम काफ़ी सारी दी थी। एंड अगर उस बजट के पर्सपेक्टिव से भी हमने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो अगर आफ्टर द बजट हमने कुछ समरी देखी भी थी, तो हमने टोटल 30 इंडिविजुअल मेंबर्स के केसेस को हमने कुछ प्रेजेंट किया था टू FBR एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर कुछ अनोमलीज थी, कुछ टैरिफ रैशनलाइजेशंस थी। तो उन 30 में से 10 ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें हम सक्सेसफुल हुए थे। अनफॉर्चुनेटली बाकी 20 जो है वो हमारे उसमें नहीं हो सके, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें हम सक्सेसफुल हुए। हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हम कन्विंस कर सके कि ड्यूटीज़ को कम कर दिया, और स्पेशली हमने फिर जो एक और एक चीज़ में सक्सेसफुल हुए थे कि जो फीड स्टॉक की आइटम जो हमारी 3% पे थी, आई थिंक हमने गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि उसको हम 0 पे ले जाएं। तो आई थिंक इन एडिशन टू काफ़ी सारी जो हंड्रेड्स ऑफ लाइन आइटम्स में जिसमें हमने ड्यूटीज़ कम की थी, आई थिंक ये 2-3 काफ़ी नोटेबल चीज़ें हैं जिसमें PCMA वॉज सक्सेसफुल। एक और चीज़ जिसके ऊपर हमने बहुत फोकस किया था वो था एंटी डंपिंग लॉज। हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं जिनको एंटी डंपिंग जो है वो इज़ द मैकेनिज्म जो हमारी इंडस्ट्री को लोकली प्रोटेक्ट करती है। कुछ अरसे पहले मेरा ख्याल है 2015 में कुछ लॉ निकला था जहां एंटी डंपिंग DDRE के जो कस्टमर्स थे उनके ऊपर एंटी डंपिंग वाज एग्जेम्प्ट। तो उस पे हमने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी लॉबी किया था एंड उसमें हमें इवेंचुअली सक्सेस मिली। करंटली जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो भी करंटली भी एंड इन द फ्यूचर अगर कोई मेंबर NTC के साथ इंगेज करके एंटी डंपिंग लग जाती है कोई प्रोडक्ट के ऊपर, तो आई थिंक उसके ऊपर कंफर्टेबल होंगे कि जो DTRE वाले कस्टमर्स हैं दे विल आल्सो हैव टू पे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को थोड़ी सी और प्रोटेक्शन भी मिल रही है। इस एफर्ट में ऑन द टैरिफ एस्पेक्ट मैं 2 लोगों का नाम मेंशन करना चाहूँगा। One is Zafar from the tariff side and Imran Qureshi, his efforts on the anti-dumping side. Thank you Zafar and Imran for एक इशू जिसके ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की है, कर भी रहे हैं, अभी वो पॉइंट जो है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इस बजट में while local supply of products to the export oriented industry उसके ऊपर सेल्स टैक्स दोबारा से लग गया था। अनफॉर्चुनेटली उसी मद के अंदर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको अभी भी सेल्स टैक्स अगर वो डायरेक्टली इंपोर्ट करें प्रोडक्ट तो उसके ऊपर एग्जेम्प्ट है। तो उसके ऊपर अगेन हम अभी तक हार नहीं मानी, हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस एनोमली को भी ख़त्म किया जाए और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ऑफकोर्स जहाँ अगर सेल्स टैक्स का इंसेंटिव होगा EOUs को तो वो ऑफकोर्स वो इंसेंटिवाइज होंगे टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट, और जब इम्पोर्ट होगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा डॉलर मुल्क से बाहर जाता है। ऑफकोर्स आजकल तो वी नीड एवरी डॉलर दैट
تو اس کے اوپر ابھی ہماری کوشش جاری ہے. آئی تھنک اس کو بھی عمران لیڈ کر رہے ہیں. تو ونس اگین عمران, تھینک یو فار یور ٹائم ہیئر. ایک اور چیز جس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے اینڈ آئی فیل کہ اس کے اوپر امپرومنٹ آئی ہے, بٹ جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے ہم نہیں پہنچے. آئی تھنک ان شاء اللہ ٹارچ پاس آن کریں گے ٹو دا نیو آفس ممبرس, تو ان شاء اللہ وہ اس کو لے کے چلیں گے. وہ ہمارا NOC کا ایشو ہے ریگارڈنگ سلفیورک ایسڈ اینڈ HCl کلورو الکلی انڈسٹری کا. یہ کافی ایک ایشو ہے. پہلے آئی تھنک کافی دفعہ جانا پڑتا تھا لوگوں کو NOCs لینے ٹو اسلام آباد, بٹ اقبال صاحب نے کافی ایفرٹ کی ہیں اس میں, اور وی ور ایبل ٹو کنونس کہ ایٹ لیسٹ ہمیں سال کا ایک دفعہ جائیں اور ایک دفعہ سال کے لیے ہمیں پورا وہ NOC دے دیں. از دیٹ دی الٹیمیٹ؟ نہیں, آئی تھنک اسٹل ورک ان پروگریس ہے میرا خیال, لیکن ہمیں اندازہ ہے سال والا ہو گیا نا, سال والا تو ہو گیا نا میرا خیال. اب ان شاء اللہ نیکسٹ اسٹیپ لیں گے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہی بہتر ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ آئی تھنک نیکسٹ ایئر بھی وی ول کنٹینیو کہ اس کو بھی فردر بیٹر کیا جائے. I think in the end, I would like to thank the EC members for their support, senior vice chairman and the vice chairman, and I would like to wish the best to the incoming team, and aapko sure کہ جی ہماری full support ہوگی for next year as well, and inshallah we will continue جو ہم نے اس مومنٹم اس سال پکڑا ہے